of today's guest lecture welcomes you all. As you all know that IIC, Institution Innovation Council of IMT Law College, is conducting so many series related to different topics to inculcate among the youth a feeling of research, entrepreneurship, and innovation. So we conducting today's series. This is the inculcation to among the youth all the spirit of which is related to the technology aspirations and research and entrepreneurship in all these. So today we have our guest speaker, Mr. Syed Iqbal, who is having a renewed person in this field of which is generally a technology and ed tech and oriented. And so as required to be introduction for the guest speaker of today's, I would like to introduce Syed Iqbal as the founder of Alpsi and Scale and also the Let's Scale Up. He is lawyer and turned entrepreneur who co-founded India's first litigation finance company. He was worked with several legal tech startups like Advocate, Legal Tech India to develop and promote a technology-based solution for low-cost and high-quality dispute resolution mechanism. He is actively supported Legal Tech India, an initiative to promote entrepreneurship in law schools. He is an experienced startup lawyer, and presently he is working with more than 30 plus startups to help them grow and acquire market. While being legally compliant, he is working with the startups, many popular startups like ProBeno, Olivoco, Remotely, Grookul, Elite SPM, Live, etc. He is closely working with them to make their entrepreneurial journey easier and effective. And also he was an advisor and mentor to incubation center like AIC, BIMTech, and TD incubation. So Mr. Iqbal is talks about today. He talks about startups and different aspect of the technology-oriented services, and also he talks about law and entrepreneur building and protecting new ventures. So to inculcate and the feeling of entrepreneurship and innovation, and also to encourage students and others in this field, I would like to welcome you again, sir. So now I'm overing to you, sir. Welcome you, sir. Thank you, Pawan. Thank you everyone for having me here, especially the institution who has invited me for the today's lecture. So we have wonderful. We have a good number of attendees for this event. We'll be starting. I hope I am clear and I'm audible. Before going ahead, I like to confirm it from the organizer. So am I audible? Yes, sir. You are audible. So let's go ahead. I'll try to keep it very simple for students who have joined, and also if they're experienced people, I like to make it very simple, and I'll try to make it very interactive. So don't lose your focus. Whatever time you're giving, let's make it valuable. So I'll transfer a lot of value. It's up to you how much you want to take it to your home. So today we'll not talk about difficult things, although the topic itself sounds little lengthy and little typical, but I'll try to make it very easy for you. So today we're gonna talk about legal on one side, and on the other side we'll talk about entrepreneurship. So we all understand what legal means. So I hope everybody knows what legal exactly means. So when we talk about legal, we are talking about our judicial system, our litigation system, our judicial administration system, and all the people who are part of it. So when we talk about all this, we talk about laws. When we talk about anything which is connected with law is called the legal domain. And when we talk about entrepreneurship, we need to understand what is entrepreneurship. So entrepreneurship is basically a venture. जब आप सिंपल अल्फाजों में मैं अगर कहूँ तो जब आप एक
आइडिया पर काम करते हैं और वो आइडिया जब लोगों को फायदा पहुंचाता है एक लार्ज स्केल पर, और वो एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसमें कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंटरप्रेन्योर वो जो करता है उसको हम एंटरप्रेन्योर करते हैं, और जो ये प्रोसेस होता है उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। मतलब आप सिंपल बिजनेस कहें तो ये एक तरह से एंटरप्रेन्योर, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये बिजनेस है, बट वो बिजनेस है ना इनोवेटिव होता है। तो जिस बिजनेस में, जिस लीगल वेंचर में अगर इनोवेशन होता है और जिस बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, तो वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं बिजनेस जो है स्टार्टअप कहलाने लगता है। सो आपको ये पार्ट बेसिकली जो है आपको समझता है कि हम दो एस्पेक्ट की बात करेंगे, लीगल और एंटरप्रेन्योरशिप की। तो इनिशियल आप क्लियर हो गए, हम इन दोनों से रिलेटेड चीजों पर बात करेंगे। तो अगर हम ये बात कर क्यों रहे हैं, हम ये समझते हैं, मतलब बहुत जल्दी हम, क्योंकि हमें पूरा डिस्कशन समझना है, तो we'll have to understand why we are at all talking about entrepreneurship and legal entrepreneurship, building ventures, protecting ventures, why we are talking about it. See, as a student, as a person who wants to have some career, everybody who has joined this session is somehow looking to make a career, make an identity, and also to make name, and also to make some fame, and also to make some money. So whenever as an individual we have a goal, we look for something which gives us a career and where we get money, name, and fame. So whatever we'll talk about is also a career option for everybody who has joined us. So even the matured faculty members, even the people who are young, even the student, even the person who has joined us today is a student. Whatever we'll talk about is nothing but a career opportunity. So, but we'll have to understand this career opportunity will be either connected with legal or will be connected by entrepreneurship. When I talk about legal, जब भी मैं अगली लीगल की बात करूं कि लीगल में क्या करियर होते हैं, तो शायद अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप समझते हैं। तो अगर आपने लॉ करी है और या आप अगर लीगल के स्टूडेंट है तो आप जानते हैं लॉयर बनना एक करियर अपॉर्चुनिटी होती है, जुडिशरी के अंदर पार्ट बनना एक करियर अपॉर्चुनिटी होती है, जज बनना एक करियर अपॉर्चुनिटी होती है, लीगल ऑफिसर बनना एक करियर अपॉर्चुनिटी होती है, और ऐसे ही बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है। तो हम जो आज बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि जब लॉ एंटरप्रेन्योरशिप से मैच कर जाता है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छी हैं, क्या हम उसमें अपना करियर बना सकते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल, उसका कितना पोटेंशियल है, क्या उसमें करियर कितना अच्छा रहेगा, और आज एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, और हमें आज तक इसके बारे में पता क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है हम कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ what is the existing scenario and how much we know about it, why we don't know about it. So ये एक बहुत बड़ा लूप होल है कि जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे अभी करियर मेकिंग पाथ हैं, उनको नहीं पता कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक करियर अपॉर्चुनिटी होता है लॉयर्स के लिए भी। अभी तक हमें लगता है कि बिजनेस सिर्फ एमबीए जो करता है बिजनेस उसके लिए होता है, या जो टेक्नोलॉजी करता है बिजनेस उसके लिए होता है, बट आपको ये समझना है कि बिजनेस जो है आप लोगों के लिए भी है, बिजनेस जो है लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी है। कैसे है, मैं दो मेजर जो है डिविजन्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आप कैसे अपनी लॉ की डिग्री का इस्तेमाल करके जो है एक करियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड स्टार्टअप लॉयर। सो आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट startup lawyers. So there is a category which is called startup lawyer, and it is also a career opportunity. जैसे आप सिविल के लॉयर बनते हैं, क्रिमिनल के लॉयर बनते हैं, साइबर के लॉयर बनते हैं, आईपीआर के लॉयर बनते हैं, इसी तरह आप स्टार्टअप लॉयर भी बन सकते हैं। तो आपको समझना होगा जो आज डिस्कशन, whatever the discussion is going on, you will have to understand how you can be a startup lawyer. First of all, let's discuss the opportunity before discussing how to be a startup lawyer. First, let's understand why to be a startup lawyer. See, after 2015, our government has started recognizing startups, the innovative businesses as startup. When the government has started recognizing the small business or the new businesses as startup, एक नई अपॉर्चुनिटी बाहर आती है जो कि एक स्टार्टअप लॉयर की, जैसे एक बिजनेस को लॉयर चाहिए होता है वैसे एक स्टार्टअप को भी लॉयर चाहिए होता है। एक बिजनेस की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है तो उसको उसके लिए लॉयर चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल,
अगर एक बिजनेस है वो एक बड़ी डील करता है, इफ अ बिजनेस डज अ बिग डील, he has to deliver some goods to somebody, like for example बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो जब आप एक डीलर है, डीलर ए डीलर बी के साथ डील करता है और वो कुछ प्रॉमिस करता है कि मैं कुछ सामान आपको दूंगा और आपको कुछ सामान जो है आपको जो है इसके बदले में मुझे सामान के बदले आपको पैसे दे। तो होता क्या है, इट इज अ ट्रांजेक्शन एंड इट इज डन बाय अ बिजनेस। सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज बेसिकली आपको इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। तो नॉर्मल बिजनेसेस में ये होते हैं। तो इसी तरह से बिजनेसेस के लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं, स्टार्टअप्स के भी लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं। इन लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला जो लॉयर होता है उसको हम कहते हैं स्टार्टअप लॉयर। सो a startup lawyer is a person who help a startup to run the business or to make it successful. अब I'll give an example. स्टार्टअप की ना एक लाइफ साइकिल होती है। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप एक आइडिया होता है। जैसे मैं आप लोग कनेक्ट कर जाएंगे बहुत छोटे छोटे चीजों से जो कि स्टार्टअप है। आपके अराउंड बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। आपके अराउंड पेटीएम एक स्टार्टअप है, आपके अराउंड ओला एक स्टार्टअप है, आपके अराउंड ओयो एक स्टार्टअप है, स्विगी जोमेटो हम सब जानते हैं क्योंकि लॉकडाउन में खाना अगर हमें बाहर से खाना है, वी ऑल ऑर्डरिंग ऑन जोमेटो एंड स्विगी। तो स्विगी एंड जोमेटो अगर हम इन स्टार्टअप्स की बात करें, पहले कितना हार्ड डिफिकल्ट इट वाज to get food at home because you had to search your favorite restaurant, then you'll have to negotiate the rates. You don't know the rates are blindfolded, then you'll have to request them to deliver the food at your home. So this was the earlier structure. So Swiggy came as a startup. What they did is they solved this entire problem of food delivering. They made it very simple. कैसे simple करा उन्होंने? जो है एक ऐप बनाया। they included, first step is they did innovation, they included the technology and they made the entire process easy, which is helpful for everybody. तो आज अगर हमारे पूरे सोसाइटी में somebody wants to order a food, it is very easy for him to do it through Swiggy. In the absence of Swiggy, it was of course very difficult. तो ये क्या था? एक innovative startup था। तो अब इस स्टार्टअप को बनने के लिए एक जर्नी ट्रैवल करनी पड़ती है। वो जर्नी ट्रैवल कहाँ से शुरू होती है? स्टार्ट फ्रॉम एन आइडिया। फॉर एग्जांपल आप लोग बहुत सारे मतलब मैं मानता हूँ कि यू ऑल आर अ ब्राइट स्टूडेंट और you all must be having some certain ideas. आपके पास आइडिया होगा कि I'll make another Facebook, I'll make another Gmail, I'll make another Google. Why not do this? Why not do that? Why not do this? So you may have multiple ideas. When you will have to execute it, you will require help of legal person, financial person, marketing person. तो जैसे आपके पास आइडियाज आते हैं, उस आइडिया तक हम कहलाते हैं वॉन्टरप्रेन्योर्स। वॉन्टरप्रेन्योर का मतलब होता है कि मैं चाहता हूं कि मैं ये करूं। सो आई वांट टू चेंज द वर्ल्ड, आई वांट टू चेंज दिस सिस्टम इन लीगल, आई वांट टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, आई वांट टू चेंज दिस एंड दैट। वी ऑल हैव दीज plans and ideas in our head. Startup is not just the idea, it's a distance, is the distance travel from the idea to execution. So whatever आपने जितने भी आइडियाज अगर सोचे थे, उसमें से अगर किसी आइडिया को आपने एग्जीक्यूट कर लिया और उसमें इनोवेशन इन्वॉल्व है और उसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी स्टार्टअप कर चुके हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि एक स्टार्टअप लॉयर क्या होता है। मैंने बताया कि आप स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप आता है, एक प्रॉब्लम पिक करता है और उसको टेक्नोलॉजी के जरिए से सॉल्व करता है। मैंने आपको सिंपल सा स्विगी का एग्जांपल दिया। Now I'll give you an example of very simple example of Uber. So Uber के होने से पहले आपको बताइए कि कितना प्रॉब्लम था कैब ढूंढने का। You didn't knew कि अगर आपको आज रेलवे स्टेशन जाना है, so whether you will be able to find any transportation or not, you didn't know it. और ना आपको प्राइसिंग का पता होता था, ना आपको ड्राइवर का पता होता था, ना उसकी स्टार रेटिंग का पता होता था, कुछ भी नहीं पता होता। तो Uber came as an innovation. उन्होंने क्या करा? टेक्नोलॉजी सबसे पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी एक तो इनोवेटिव थॉट लेकर आए कि हम ऑनलाइन ही बुक करा करेंगे। why do we have to go and rush and talk to auto वालास and taxi वालास and why to negotiate with them for the pricing? Why not do it online? तो उन्होंने सबसे पहले एक इनोवेशन सोचा, फिर उसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की। टेक्नोलॉजी उनका क्या था? उनका मोबाइल ऐप इज अ टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले इनोवेशन, एक आइडिया आया उनको, आइडिया के बाद उसमें उन्होंने इनोवेशन डाला, फिर उसके अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी डाला। नाउ दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मासेस। अब इससे क्या होगा? डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। इससे पहले टैक्सी लेना वाज अ डिफिकल्ट जॉब। मतलब हमारे लिए
मतलब इतना आसान नहीं था टैक्सी, नॉट एवरीबडी कुड अफोर्ड टैक्सी। नॉर्मली क्या होता है, टैक्सी वाला वाज वेरी एक्सपेंसिव, बट विद Uber and Ola everybody can do, whosoever has a mobile app can book a cab. So this was a simple solution and this was called a startup. So अब जैसे ये स्टार्टअप बना होगा तो इसने बहुत सारे लीगल हेल्प लिए होंगे किसी लॉयर से। वो जो लॉयर जो इनको हेल्प कर रहा था वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप लॉयर है। अब बात क्या है, 2015 के बाद से और रिसेंटली 2020 के बाद से स्टार्टअप्स के जो नंबर हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो स्टार्टअप्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब जितने स्टार्टअप्स होंगे उन सबको जो है लॉयर की रिक्वायरमेंट होगी। स्टार्टअप के साथ कहीं ना कहीं एक लॉयर कनेक्टेड है। जैसे मैं अराउंड 30 स्टार्टअप्स के साथ कनेक्टेड हूँ एज अ लॉयर। सो व्हाट आई एम डूइंग विद देम, हम उनको करते कैसे कैसे हेल्प करते हैं। व्हाट, आप कुछ इसमें कुछ नया नहीं करना है आपको, यू डोंट हैव टू डू समथिंग नो। आपने लॉ पढ़ा है, सिंपल सी बात है, आपको लॉ आता है, आप लॉ की आपकी एक्सपर्टाइज होगी, तो आपको पहले ही पता करना है कि स्टार्टअप को किन किन चीजों, किन किन लीगैलिटीज की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हाउ डू आई हेल्प एज अ स्टार्टअप लॉयर टू ऑल दीज स्टार्टअप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हेल्प देम टू पिक अ एंटिटी। अब एंटिटी कैसे बात करते हैं, एंटिटी की जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है उसको एक बिजनेस एंटिटी चाहिए होती है, या प्रोप्राइटरशिप होती है, या पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है। सो हाउ डू वी हेल्प देम टू फाइंड एन आइडेंटिटी एंड देन वी हेल्प देम टू इनकॉर्पोरेट। तो मान लीजिए अगर कोई आता है और हमें कहता है कि मुझे ऐसा बिजनेस करता है, वी हेल्प देम चूज कि विच एंटिटी यू हैव टू पिक। एज अ लॉयर यू कैन ऑल्सो हेल्प देम, क्योंकि आप लोग भी कंपनी लॉ पढ़ते हैं, आप लोग भी के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि देखना है कि आप यू विल हैव टू लर्न कि कैसे आप स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकते हैं। तो स्टार्टअप को किन किन चीजों पे हेल्प चाहिए होती है। सबसे पहले एंटिटी पिकिंग पर हेल्प चाहिए होती है, जो कि एज अ लॉयर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सेकंड थिंग which you may require to do is they also need help with IPRs। अब ज्यादातर स्टार्टअप्स को दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है, एक होता है पेटेंट और एक होता है ट्रेडमार्क। एज अ लॉयर, एज अ स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट, आपको पता है कि ट्रेडमार्क क्या होता है, आपको पता है कि पेटेंट क्या होता है। तो आप अगर पेटेंट और ट्रेडमार्क सीख लें तो कहीं ना कहीं आपने एक करियर अपॉर्चुनिटी जो है बना ली है, और आपने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर लिया है हाउ डू आई हैव टू मेक मनी। तो आप स्टार्टअप्स को इनके जरिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो पहला जो हो गया कि एंटिटी बनाने में आप हेल्प कर सकते हैं। दूसरा आईपीआर में हेल्प कर सकते हैं कि उनका ट्रेडमार्क दिलाने में। और all this is not a difficult, whatever you have read in the book, you just need a little practical exposure to it, then you can help these startups। अब एक फायदा मैं आपको और बताता हूँ, और ये सबको स्ट्राइक करेगा। जितने स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत ध्यान से इसको सुने और नोट डाउन कर लें, और लास्ट में क्वेश्चन जरूर पूछे। तो अगर जिसको समझ में आएगा वो अल्टीमेटली क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं, तो पूछेगा ही, और नहीं समझ में आया तो ऑफकोर्स कोई बात नहीं, एक और सेशन हम कभी ना कभी और ले लेंगे, उनको फिर से समझा देंगे। तो आप देखिए जब आप एज अ लॉयर होते हैं और जब आप बाहर जाते हैं, तो आपको पहले ये समझना है कि देखिए करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक उसका स्किल सेट बिल्ड करना। अब हम क्या होता है कि हम पहले 5 साल लॉ करते हैं या 3 साल लॉ करते हैं, देन हम बाहर जाते हैं और हम लॉयर बनने की कोशिश करते हैं। वहां क्या होता है, हमें ट्रेनी रखा जाता है, हमें जो है मैनेजमेंट के हम जो है इंटर्न बनकर रहते हैं, या फिर हम बेसिक एसोसिएट बन के रहते हैं। और ये जर्नी जो है ना 4-5 साल की होती है। तो सोचिए आप 5 साल तो लॉ करके आते हैं, और 5 साल फिर आपको फिर ट्रेनिंग भी करनी होती है, तो 10 साल बाद आप अर्न करना शुरू करते हैं, आप अपना नाम बनाना शुरू करते हैं। तो जर्नी जो है ना बड़ी लंबी बन जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब आप कॉलेज में हो ना, तो आपको इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या स्किल सेट चाहिए होता है यार लॉयर बनने के लिए। क्या स्किल सेट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ स्टार्टअप लॉयर, यू आल्सो हैव टू लर्न कि what are the skills required to become a lawyer। सिंपल लॉयर जैसे बनने के लिए स्किल्स रिक्वायर होती है, उसी तरह स्टार्टअप लॉयर के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आप पढ़ लेंगे तो आप स्टार्टअप लॉयर बन सकते हैं, क्या आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले लेंगे तो आप स्टार्टअप लॉयर बन सकते हैं, और क्या आप जो है जान जाएंगे तो आप स्टार्टअप लॉयर बन सकते हैं। तो इससे फायदा क्या हो गया, अगर आप कॉलेज के टाइम पर इफ यू एक्सप्लोर व्हाट इज द स्किल सेट रिक्वायर फॉर बिकमिंग अ स्टार्टअप लॉयर, आप जो है आसानी से कॉलेज खत्म करते ही अपना करियर शुरू कर सकते हैं। You don't have to wait for it। The only thing which you will require is the client, and it is not difficult to find a client as a startup। तो अब क्या है कि नॉर्मली स्टार्टअप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, और हर दिन हजारों स्टार्टअप जो है नए जो है लॉन्च होते हैं। तो इन स्टार्टअप्स को लॉयर की जरूरत होती है। तो अब लॉयर को क्या क्या करना है, पहले तो एंटिटी बनानी आनी चाहिए, आईपीआर करना आना चाहिए। तीसरी जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट स्टार्टअप को होती है
वो होती है डॉक्यूमेंट्स की। जैसे उनके लिए इफ आई टॉक अबाउट स्टार्टअप स्पेसिफिकली, दे रिक्वायर को फाउंडर एग्रीमेंट। नॉर्मल बाकी किसी बिजनेस के लिए को फाउंडर की जरूरत नहीं पड़ती है, दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट विच इज अ को फाउंडर। दूसरा होता है एनडीए बनाना, एक बहुत कॉमन एक्टिविटी होती है एनडीए। ये देखिए आप सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर आप इनको पढ़ ले या इनके टेम्पलेट्स को समझ ले तो आप बहुत आसानी से एज अ, आपके पास बेसिक स्किल सेट है, आप चाहे तो आराम से इनको जो है इनको हेल्प कर सकते हैं इनके इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। एंड दीज डॉक्यूमेंट्स पे यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, सो you can just draft simple documents and you can get good amount of money. So but you have to learn the skill set. So startup lawyer, as a startup lawyer, आपको क्या क्या स्किल सेट सीखनी है, एंटिटी के बारे में समझना है आपको, आईपीआर समझना है, एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं आपको ये समझना है, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जैसे आप स्पेसिफिक लॉ सीख सकते हैं। अब एक और एस्पेक्ट होता है कि चलिए मान लीजिए आप जेनरिक स्टार्टअप लॉयर नहीं बनना चाहते, इफ यू वांट टू बिकम अ स्पेसिफिक स्टार्टअप लॉयर। अब क्या है कि हर डोमेन में अलग अलग स्टार्टअप है। जैसे मैं बताता हूँ कि फूड टेक में मल्टीपल स्टार्टअप है, जोमेटो जो है फूड टेक का स्टार्टअप है, स्विगी जो है फूड टेक का स्टार्टअप है। इसी तरह फिनटेक के बहुत सारे स्टार्टअप है, पेटीएम इज अ फिनटेक स्टार्टअप, फोन पे इज अ फिनटेक स्टार्टअप, और आपका गूगल पे इज अ फिनटेक स्टार्टअप। अब अगर आप मोबाइल फोन, अगर मैं जो नाम ले रहा हूँ, अगर आप अपना मोबाइल फोन खोलें और आप एक बार उसको स्लाइड करें या आप उसको स्क्रॉल करें, यू विल फाइंड देयर मल्टीपल एप्स, एंड ऑल दीज ऐप विच आई थिंक इज अ सर्विस प्रोवाइडर इज ऑल्सो अ स्टार्टअप। तो हमें लगता है कि हम स्टार्टअप की दुनिया से बहुत दूर है, हम उसका पार्ट है। हम जो है रेगुलर आपका, मैं आपको सोशल नेटवर्किंग की बात करता हूँ, वो भी स्टार्टअप्स होते हैं। सो ऑल दीज इंस्टाग्राम, ऑल दिस फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप, क्या है, दीज आर स्टार्टअप्स। कैसे स्टार्टअप है, मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया। If you want to check whether a company is a startup or not, you will have to see whether they have picked a big problem or not, whether they have introduced innovation or not, whether they have included technology in that, or whether they are solving a problem of masses or not. So अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो वो डेफिनेटली स्टार्टअप है। तो अब ऐसे ही बहुत सारे डेली आ रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं इन स्टार्टअप्स के, अब इन स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए हमें वो स्किल सेट बनानी है ताकि हम स्टार्टअप लॉयर बन सके। अब एक करियर एस्पेक्ट और है। आप जैसे आप पिक करते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉयर बनूंगा, सिविल लॉयर बनूंगा, क्रिमिनल लॉयर बनूंगा। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, बहुत आई स्पीक बहुत ही अच्छा से मेरा शेयर करता हूँ। किसी ने मुझे ये बताया, आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लें। देखिए, जो लॉ का लिटिगेशन का जो करियर है, या जो ओल्ड करियर अपॉर्चुनिटीज है, वो ऐसी हैं जैसे क्राउडेड बस होती है। सो ओल्ड करियर अपॉर्चुनिटीज आर लाइक क्राउडेड बस। अब क्राउडेड बस में गेटिंग नेम, मतलब एक क्राउडेड स्पेस में नाम पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है। ये ऐसा ही मुश्किल है जैसे क्राउडेड बस में सीट मिलना। फॉर्चुनेटली सम ऑफ यू मे गेट अ सीट इन अ क्राउडेड बस। किसी ने कोई खाली होकर चला गया, या किसी का बस स्टैंड आ गया, तो सम ऑफ यू मे गेट अ सीट, एंड गेटिंग द सीट मीन्स दैट यू गेटिंग द आइडेंटिटी। तो ट्रेडिशनल जितने करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो एक क्राउडेड बस की तरह होते हैं, उसमें आपको एक आइडेंटिटी बना पाना बहुत मुश्किल है। और वही मैं एग्जांपल अगर दूं स्टार्टअप लॉ, Hello. Hello. There might be some technical issue, some technical error. It will be resolved soon. Please be patient. Hi. So welcome back once again. So I was so Welcome, sir. involved in the discussion that I forgot that there
network problem. Sorry, I'll get back the flow. I hope that nobody has disconnected or discontinued the session. Let's get back to it. So मैं आपको बता रहा था कि आपके पास लॉयर बनने के लिए मेजर 2 अपॉर्चुनिटीज हैं. So either you can be a traditional lawyer, जैसे कि आपका सिविल लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, जो है बाकी जितने प्रॉपर्टी लॉयर्स, फैमिली लॉयर्स, ये सारी अपॉर्चुनिटी. On the other hand, you have new opportunities like startup lawyer, edtech lawyer, ड्रोन टेक लॉयर, और जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मीडिया लॉयर, और बाकी सारी जो है मैं कहता हूं कि देयर आर अदर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी which has been introduced recently. तो इसका एग्जांपल कैसे होता है? It is like all traditional opportunities are like crowded bus. It is very difficult to make a space and have a seat, but all new avenues, it is very difficult to find a bus, but if you get the bus, of course you have a seat for sure. So आपको ये देखना है कि ये नया तो है, सीखना तो पड़ेगा, but if you learn, there's lot of opportunity. इससे फायदा क्या होगा? 2 चीजें. Most of the people, देखिए हमारे पास सबसे important जो होता है वो होता है टाइम. So हमारे लिए क्रूशियल क्या है कि हम अपना करियर एज अर्ली एज पॉसिबल बनाना शुरू कर दें. लेकिन नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो है ना, जब कॉलेज में होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि करियर जो है ना कॉलेज डेज में ही बनता है. उनको लगता है वंस वी पास आउट देन विल बी एबल टू मेक अ करियर. सो आज जो हम बात कर रहे हैं कि लीगल एंटरप्रेन्योरशिप में करियर बनाना कैसे है, कब बनाना है. तो आई थिंक कि आप जितना जल्दी शुरू करते हैं उतना जल्दी अच्छा होता है कि आप करियर बना सकते हैं. कैसे बनाते हैं करियर? कि कॉलेज के टाइम पर आपको पता आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या स्किल सेट चाहिए होते हैं स्टार्टअप लॉयर बनने के लिए, और अपॉर्चुनिटीज बाहर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं. सो इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी यू विल बी एबल टू. I think there is some other mic which is on. Can you just mute it? I think that will be really helpful. Yeah, so that's how we have to basically. So that's can work for you. आपके पास एक करियर अपॉर्चुनिटी है जिसको बोलते हैं स्टार्टअप लॉयर. स्टार्टअप का मतलब हो गया एक बिजनेस जो कि बिल्कुल नया है. आप उसको सपोर्ट करते हैं. क्या कैसे सपोर्ट कर सकते हैं मैंने आपको बताया. फिर से मैं एक बार क्रक्स बना रहा हूँ. पहला पार्ट हम यहीं पर कवर अप कर लेते हैं, सेकंड पार्ट में हम जाएंगे अभी, और लास्ट में क्वेश्चन भी लेने हैं. तो फर्स्ट पार्ट हमें देखना है कि देखो एक स्टार्टअप लॉयर को आना चाहिए कंपनी रजिस्ट्रेशन के पार्ट. सब कुछ किसी ने क्वेश्चन पूछे हैं. विल गेट बैक टू द क्वेश्चन एट द लास्ट ऑफ द सेशन. Really sorry because we have limited time. I'll get back to the question. Answer करे बिना मैं जाऊंगा. So don't worry about it. So पहला पार्ट होता है कि स्टार्टअप के लिए सेट क्या चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कैसे बनती है, एंटिटी कैसे पिक होती है, आईपीआर क्या होते हैं, कैसे आप आईपीआर से हेल्प कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है आप किसी स्पेशल लॉ के बारे में जानते हैं, जैसे लाइसेंसेस दिलाना. अब जैसे ड्रोन का लाइसेंस दिलाना इज एन आर्ट. So I have worked with some startup who work in drone, and I have worked to help them to get drone licenses. अगर आप ये सीख लेते हैं तो 99% lawyers को ये नहीं आता. Then you are getting into a career where everybody knows and it gives you huge amount of money. उसके अलावा जो है आपको आना चाहिए बेसिक डॉक्यूमेंट. आपको आइडेंटिफाई करना है what are the documents required for a. आप उसको सीख सकते हैं, उनके टेम्पलेट्स लर्न कर सकते हैं और उनकी ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं. और straight away after passing out your college you can give the services and you can start your career as a startup lawyer. तो एक career opportunity तो हमने समझ ली कि हम lawyer ही बनेंगे, but we become a startup lawyer. तो अब startup lawyer बनने के लिए हम स्किल सेट को अपने कॉलेज के अंदर रहते हुए we have to develop it. इस पर हम और डिस्कशन कर सकते हैं. यू कैन गूगल एंड फाइंड आउट व्हाट इज अ स्टार्टअप लॉयर. यू कैन टेक माय नंबर और यू कैन कनेक्ट मी ओवर ईमेल और यूट्यूब टू फाइंड आउट व्हाट डज अ स्टार्टअप लॉयर डू एंड वी कैन अल्टीमेटली लर्न अबाउट इट एंड यू कैन फ्रेम योर start your career and doing the startup lawyer thing. So एक नई ब्रीड है, बहुत कम लोगों को पता है. It's a huge opportunity. Second part हम आते हैं. Let's talk about पहला अगर हम टॉपिक देखते हैं तो it says protecting ventures and building ventures. So एक लॉयर पहले क्या कर रहा है, लीगल का काम कर रहा है और बिजनेसेस को हेल्प कर रहा है. सो नाउ इन द सेकंड पार्ट, व्हाट इज लीगल एंटरप्रेन्योरशिप? हाउ डू यू बिल्ड अ वेंचर? हाउ डू यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? अब इसको बेसिकली कहते हैं लीगल टेक स्टार्ट करना. क्या करना? लीगल टेक स्टार्ट करना, या फिर एक लॉयर के थ्रू एक बिजनेस स्टार्ट करना. सो यू who are doing law may have some interest in business also. Or if not in business, you can still explore doing startups. तो होता क्या है, हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे और उनका सिलेबस
देखेंगे, if you talk about IITs, most of the startups are started by IIT. Most of the successful startups are started by IIT. Most of the successful startups are started by IIM. तो आप ये देखें कि कॉलेज के अंदर ही ये MBA करने वाले जो लोग होते हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं या फिर कॉलेज के बाद स्टार्ट कर लेते हैं। हालांकि इनका काम MBA होता है। MBA में क्या मेजर काम होता है? HR, फाइनेंस और HR क्या बोलते हैं, फाइनेंस होता है, HR रिक्रूट होता है। तो इसी तरह से अगर आप IIT में देखें तो ज्यादातर स्टार्टअप्स जो होते हैं वो IIT के जो फाउंडर्स होते हैं वो IIT से होते हैं। वो लोग इंजीनियरिंग करते हैं बट एट द सेम टाइम दे थिंक ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। ऐसे ही जब आप लॉ कर रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है उन्हीं कॉलेज वालों की तरह कि, क्योंकि अब the problem is that we lack this in our ecosystem. Nobody tells that this is also a career opportunity. Nobody informs us that you can also explore this opportunity of starting your own startup. अब क्या हो रहा है, पिछले 4 सालों में मल्टीपल लीगल टेक स्टार्टअप्स आर कमिंग। क्या होता है, लॉयर्स जो है लीगल के एरिया की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करते हैं और एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, और वो लॉ खत्म होने से पहले अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ही स्टार्ट करते थे। दे डोंट हैव टू वेट फॉर पास आउट। तो इसका फायदा क्या है कि आपके लिए जो लीगल एंटरप्रेन्योरशिप का जो करियर का जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कॉलेज के अंदर रहते रहते ही अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। अब लीगल टेक होता क्या है, देखिए हम लीगल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग बात करते होंगे एज अ स्टूडेंट्स, बहुत इवैल्यूएट करते होंगे, हम कमेंट्री करते हैं, बहुत बार मजाक भी बनाते हैं कि यार हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम इतना स्लो क्यों है, हमारे यहाँ कानून जो है इतना जो है सपोर्टिव क्यों नहीं होता, लोगों को लॉज इतने इन्फॉर्म क्यों नहीं है, बेल आसानी से क्यों नहीं मिलती है, या फिर हमें क्यों जो है लॉयर्स तंग करते हैं, या फीस इतनी ज्यादा क्यों होती है, या ड्यूरेशन इतना ज्यादा क्यों होता है क्या? ये हमारे लीगल डोमेन की प्रॉब्लम्स है। अब जो इंजीनियर्स और MBA पास आउट्स आ रहे हैं या जो भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, दे डोंट लुक ओवर द इंटायर लीगल स्ट्रक्चर, क्योंकि उनको उतना पता ही नहीं होता है। हमें इसलिए पता होता है कि हम इसके पार्ट होते हैं। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, लीगल की इंटर्नशिप मिलना बहुत मुश्किल है, लीगल में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, लीगल में क्लाइंट्स मिलना बहुत मुश्किल है, लीगल में डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है, इतनी मोटी मोटी फाइलें हमें खुद ही पढ़नी, मोटी मोटी किताबें हमें खुद पढ़नी। अब SSC जो है एक तरह से आसानी है। पहले आप if you try to understand, before SSC there were SSC books. अब think of exploring and finding a judgment in SSC books. आपके पास पूरी लाइब्रेरी पड़ी है, आपको उसमें से अपना जजमेंट फाइंड आउट करना है, कितना मुश्किल था। बट when this search engine come, it made our lives easy. ठीक है, इसी मैं ये बहुत कॉमनली एग्जांपल देता हूँ क्योंकि आप रिलेट कर पाए। देखिए हम लीगल इंडस्ट्री के पार्ट होते हैं तो हम समझते हैं कि देखो एक लिटिगेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो केस फाइल कर रहा है उसको कितना प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, एक लॉयर को पूरे दिन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि मैनेजमेंट से रिलेटेड मल्टीपल केसेस एक साथ हो गए तो कौन सी कोर्ट में जाए, कौन सी कोर्ट में नहीं जाए, किस में प्रॉक्सी को भेजे, किस में नहीं भेजे। और एक लॉयर को और भी प्रॉब्लम्स होती है कि ऑफिस कैसे मैनेज करे, डॉक्यूमेंट कैसे मैनेज करे, इंटर्न्स कैसे मैनेज करे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरह जुडिशरी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि इतने सारे मैटर कैसे लिस्ट करें, 10-10 साल से मैटर चल रहे हैं वो कैसे फाइंड आउट करें, कैसे ट्रैक करें, कैसे जो है हम फास्टर कम्युनिकेशन करें, जैसे अचानक केस लिस्ट हो गया कैसे हम लोगों को बताएं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन लीगल इंडस्ट्री। इफ एनी ऑफ यू कम अप and take one of the issues, pick one of the issues that I am going to solve this issue through innovation and introducing technology. And of course अगर आप इनमें से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये मासेस की प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्व करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ अबाउट लीगल टेक स्टार्टअप। सो ऐसा नहीं है कि आप पहले लोग होंगे जो ये कर रहे होंगे, देयर आर मल्टीपल स्टार्टअप, और मल्टीपल स्टार्टअप जो है लीगल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब मैं कुछ नाम लेता हूँ, जैसे वकील सर्च। सो आप यू कैन पेन डाउन दीज नेम्स, दिस कैन हेल्प यू फाइंडिंग आउट कि इस लीगल स्टार्टअप करते क्या है। सो पहले क्या था, कंपनी बनाने के लिए आपके पास स्पेसिफिकली लॉयर के पास जाना पड़ता था, या IPR करने के लिए आपको लॉयर के पास जाना पड़ता था। नाउ यू कैन डू इट ऑनलाइन, यू जस्ट हैव टू फिल अ फॉर्म एंड इट विल बी डन. So you don't have to hire a lawyer, you don't have to talk to a lawyer, and it can be done through technology. So Vakil Search is one of the legal tech startups. SpotDraft एक और legal tech startup है। तो एक लॉ स्टूडेंट है जो कि NLU उड़ीसा से हैं, और वो जो है क्या करते हैं कि मशीन बनाते हैं जो 50 या 2,000 पेजेस के कॉन्ट्रैक्ट को विद इन 30 मिनट्स पढ़ लेता है और फाइंड आउट कर लेता है व्हाट आर द मिस्टेक्स। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड टेक्नोलॉजी इन अ मशीन, एंड उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद लोग, मान लीजिए कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो मुझे एक डॉक्यूमेंट, एक टेंडर डॉक्यूमेंट है जो मुझे साइन करना है गवर्नमेंट के साथ, एंड आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द पॉसिबल मिस्टेक्स व्हिच आई कुड हैव डन। सो व्हाट आई विल डू,
I will upload the entire document, और जो ये spot draft है ये identify कर लेगा कि कहाँ mistakes है, कहाँ repetitions है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ spelling mistakes है. So what has happened, अब इन सारी एरियाज को जिनको हम पहले प्रॉब्लम मानते थे, लोग जो है उनको टेक्नोलॉजी के जरिए सॉल्व कर रहे हैं. तो स्पॉट ड्राफ्ट एक जो है, लॉ रैटो आपने सुना होगा, एक स्टार्टअप है, और बहुत सारे स्टार्टअप जो है, लीगैलिटी करके एक स्टार्टअप आया है. जैसे पहले क्या होता था कि आपको स्टैम्प पेपर लेने के लिए यू हैव टू गो टू द नोटरी एंड यू हैव टू आस्क फॉर अ स्टैम्प पेपर एंड देन यू हैव टू मेक ऑफिशियल सिग्नेचर on hard paper, and then you have to scan it and send it. Legality, what they have done, they have uploaded the entire stamp papers, they have made it available. You can sign it through Aadhaar. So they made documentations and contract execution very easy. It can be done online. Now you don't need pen and paper to execute documents. So that's how एक और startup है जो कि ODR के अंदर आता है, उसको ODR ways you must be knowing about. अब ODR क्या था, एक ऐसा concept था कि जैसे मुझे अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केस फाइल करना पड़ता था और कोर्ट जाना पड़ता था. आई डिडंट हैव time to go court. I didn't have money to visit courts regularly. So this ODR concept is online dispute resolution. What is happening now? You can come up as a litigant from one side and other litigant come from the other side, and you can resolve your dispute in the presence of dispute resolution person, and you can solve it on online. जैसे हम कंप्यूटर पे बैठकर अभी एक सेशन ले रहे हैं, जैसे ये सेशन पहले वर्चुअल नहीं होते थे. I'll have to come to your college, but now it can be done through online. Likewise, अब जैसे आप रिसेंटली सुन भी रहे होंगे कि कोर्ट्स बंद है, but the Supreme Courts are taking hearings, the High Courts are taking, Supreme Court is taking hearing, and the High Courts are also taking hearing. तो ये क्या है कि लीगल टेक्स केस में टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर एक वेंचर बना दिया. अब इस वेंचर के पीछे देयर इज लॉट ऑफ कमर्शियल इन्वॉल्व, से आप पैसा जो है बना सकते हैं, यू कैन मेक मनी. सो एक तरफ तो आप लीगल की नॉलेज यूज करके लॉयर बनते हैं, दूसरी तरफ आप लीगल की नॉलेज यूज करके उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं. इसीलिए पहले पार्ट को कहा जाता है बिजनेस प्रोटेक्शन, सेकंड पार्ट को कहा जाता है बिजनेस बिल्डिंग. सो यू कैन बिल्ड बिजनेसेस, यू कैन बिजनेसेस by using your skill set of by using your legal skill set. इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक और अपॉर्चुनिटी हो सकता है. आप में से बहुत सारे लोग कहें कि हम कैसे स्टार्टअप बनाएं, हमें तो कि कैसे स्टार्टअप बनेंगे. What you can do, there are more than 100 legal tech startups in India. You can find out, make a list, and they regularly give vacancies, internship के लिए vacancies they are hiring vacancies they provide. So what you can do to explore the industry, you can go do internship with them. Legal Salah, Legal Wiz, Legal Rasta, multiple startups are there. So अगर आपको समझना है कि कैसे स्टार्टअप काम करता है, लॉकटॉपर्स जो आप नॉर्मली जानते हैं, लॉ सीखो जो कि आप नॉर्मली सुनते हैं, ये लीगल में एक टेक स्टार्टअप्स है. तो आप इनके साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं. आप समझ सकते हैं कि कैसे लीगल नहीं कर रहे हैं, they are doing business but they're using as legal as a skill set. So आपको major you have two categories, two अपॉर्चुनिटीज जो कि मैंने आज आपसे डिस्कस कर रही है. पहली अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टार्टअप लीगल को अपने स्टार्टअप के हिसाब से सीखिए और स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए स्टार्टअप लॉयर बन जाए, ठीक है. या फिर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री के लिए स्किल सेट सीखिए और उस इंडस्ट्री के स्टार्टअप्स को हेल्प करें, जैसे फूड टेक, एड टेक, फिनटेक, ये सारे जो कैटेगरीज होती है. दूसरा है कि आप अपने लीगल स्किल सेट को यूज करके एक टीम बनाकर बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं इन योर अर्ली डेज, इवन इफ यू इन कॉलेज. और जरूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा आता है, देयर आर पीपल हु विल इन्वेस्ट मनी इन यू. सो द पीपल, अब ये कौन लोग हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे? दे आर कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स, दे आर कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट, दे आर कॉल्ड सिंडिकेट इन्वेस्टर्स. तो ये लोग कौन है? अगर आपके बिजनेस में पोटेंशियल नजर आता है और आपने कुछ ऐसा आइडिया खड़ा कर दिया होता है जिसमें लोग they are passionate to get this service, then these people will invest huge amount of money in you. You cannot even think how much money they can invest in you. So ये एक करियर अपॉर्चुनिटी है. आप इसके अलावा स्टार्टअप्स को खुद नहीं कर सकते तो बना नहीं सकते तो आप स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं. देख सकते हैं कि कैसे लीगल टेक स्टार्टअप्स. अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अर्ली डेज स्टार्टअप है, बहुत रिस्की है, बहुत मेच्योर स्टार्टअप्स हैं, बहुत मनी मेकिंग. एक माइक लीगल करके स्टार्टअप है, अगर आप IPR में कुछ करना चाहते हो तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो आई थिंक द लिस्ट इज एंडलेस, मोर देन 100. इफ यू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, दैट्स आल्सो गुड इन लीगल इंडस्ट्री. इफ यू डोंट वांट टू legal industry, you can explore other industry. At the same time, if you don't want to do startups but want to get an idea of it, you can join these people and work with them. So मैंने मेजरली बताया कि आप करियर अपॉर्चुनिटी कैसे देखते हैं लीगल
में लीगल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है, प्रोज कॉन भी हमने थोड़े डिस्कस करे, स्कोप के बारे में डिस्कस करें. नाउ लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन, और एक एक करके क्वेश्चन आप लोग मुझे दे सकते हैं. So if anyone have any query related to the what sir talks about regarding whole scenario of the digital startups and technology oriented services, so if anyone have any question regarding this, you can ask to sir. Yes. If the questions are even generic, I don't have a problem answering them. But I was expecting कि आपने एक technical session लिया है, but जैसे जैसे आप life में आगे बढ़ते जाएंगे, you will have, अगर आप इसका एक bit भी understand कर पाए हैं, if you could have understand even single bit of it, you must ask and you must follow it. You will ultimately reach to a point where it will be very fruitful for you. So मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को generic question भी है, that's okay. But I think you should take courage of asking question. You should not hesitate. You should explore this side. And nobody is going to punish you because it's very new. Even the old lawyers don't know about it. So अगर आप गलती करते हो तो पता नहीं चलेगा कि गलती करी है. So feel free about it. Okay, we have a question from Sanjeev Sharma. Sanjeev sir, you may ask. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. So, sir, first of all, thank you so much. Like, it was such an stimulating question, and I personally got like tremendous learning. I mean, in a very short span of time, I must start with admitting that. And my question is, बेसिकली जैसे हमने स्टार्टअप्स देखे हैं सर, तो स्टार्टअप्स पे बेसिकली हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ इनोवेशन का इनपुट होता है या कुछ न्यूनेस का इनपुट होता है कि आप या तो टेक्नोलॉजी न्यू ला रहे हैं या बिजनेस मॉडल न्यू ला रहे हैं. और आपने उसका कुछ बहुत एग्जांपल भी दिया है कि जैसे लीगल एरिया में कैसे स्टार्टअप्स को हम न्यू कर सकते हैं. बट सर इसमें मुझे लग रहा है कि जैसे ज्यादातर जो ऑफरिंग्स आपने जैसे बताई हैं, इट इज अबाउट लाइक ऑफरिंग लीगल सर्विसेज यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग इंटरनेट, and then making it available. सर इसके और ये काफी लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं ऑलरेडी. तो अगर हम कुछ ऐसा स्टार्टअप क्रिएट करेंगे तो इट विल नॉट बी न्यू. तो लीगल एरिया में सर आप थोड़ा और एक्सपेंड कर सकेंगे सर कि मतलब और क्या पॉसिबल होराइजन्स हो सकते हैं टू डिटरमाइन कि हम कैसे कोई न्यू एरिया ला सकते हैं. तो टेक्नोलॉजिकल इनपुट होता है या न्यू प्रोडक्ट इनपुट होता है, यहाँ पे हम लीगल नॉलेज को अभी तक बात कर पा रहे हैं कि हाउ यूजिंग टेक्नोलॉजी वी कैन ऑफर दैट. So Sanjeev, yeah. So thank you for your questions. You were very kind in the beginning. You appreciated a lot. Thank you for that. So मैं आपको बताता हूँ. देखिए दो चीजें होती हैं. जब आपको चीजें लिमिटेड लगे ना और आपको लगे कि most of the thing has been already done. इसका एक simple rule होता है. Either you have to be the first or either you have to be the best. तो ऐसा नहीं है कि आप already कुछ हो रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते, but you have to be best in that industry. First part. Second, और वरना तो जो दूसरा आपने बताया कि हमें फर्स्ट होना चाहिए. Sir, you may continue. You may continue, sir. Yeah. So I was saying, Sanjeev ji, कि the rule is very simple. Either you have to be the first. अगर आपको लगता है कि आप बहुत इनोवेटिव हैं, अगर आपको लगता है इनोवेटिव नहीं है तो you have to be the best in the same industry. देखिए क्योंकि वकील सर्च को शुरू हुए बहुत 2011 में शुरू हुआ, ऐसी सिमिलर कंपनीज 2019 और 2020 में भी स्टार्ट हुई और वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं. तो एक तो ये पार्ट जो है बेसिकली हो सकता है. और दूसरा आपने पार्ट पूछा कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाकी एम्बिट में. ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं. जैसे अब मैं एग्जांपल दूंगा housing.com का. housing.com एक रेंट पर प्रॉपर्टी रेंट आउट करने वाली या प्रॉपर्टी सेल करने की वेबसाइट है. लेकिन housing.com ने भी एक लीगल का इनोवेशन खुद में इंक्लूड कर लिया है कि कैसे क्या करा है उन्होंने. बेसिकली उन्होंने रेंट एग्रीमेंट्स ऑनलाइन कर दिए हैं कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन जो है रेंट एग्रीमेंट्स कर सकते हैं. तो जैसे दूसरे बिजनेसेस लीगल के अंदर घुस सकते हैं, इसी तरह आप लीगल करते हुए दूसरे बिजनेसेस के अंदर घुस सकते हैं या कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस भी कर सकते हैं. सो अगर आप बिजनेस करना सीख जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से, होता क्या है किसी भी बिजनेस करने के लिए एक यू नीड अ स्किल सेट. अब आपका लीगल का स्किल सेट बना हुआ होता है तो इट इज ईजियर टू स्टार्ट अ लीगल टेक. और आपके अगर लेकिन आप बिजनेस करना स्टार्टअप करना सीख जाते हैं, यू डोंट नीड टू बी लिमिटेड विद द लीगल थिंग, यू कैन एक्सपैंड टू द अदर वर्चुअल वर्क्स. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. You're welcome. So there are some questions in the chat also. Wasim, Wakar. Yeah. Would you like to take me that first, or if there is another question from somebody else? Sir, Ashish Verma, I think, has a question. Yes, sir. Yeah. So Ashish, please go ahead with the question.
First of all, sir, good evening. Good evening. Thank you for very good session. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास आइडिया भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम लोग उस आइडिया को टेक्नोलॉजी में कैसे कन्वर्ट करें? हाँ, मैं इसका सिंपल सा आंसर देता हूँ। सबके पास ये प्रॉब्लम होगी। क्या होता है कि हम होते हैं नॉन टेक्निकल फाउंडर्स, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कोई जानकारी नहीं होती है। होता क्या है, इसके 2-3 तरीके होते हैं। हमें जो है अब टेक्नोलॉजी को अपने स्टार्टअप में अंदर लाना है, तो सबसे पहले हम अपने आइडिया को बिल्ड करते हैं। आइडिया को बिल्ड करने के बाद 2 तरीके हैं, या तो हम टेक्नोलॉजी हायर कर ले और पैसा पे करके जो है टेक्नोलॉजी सर्विसेज दें। मतलब मान लीजिए टेक्नोलॉजी नॉर्मली होती है आपकी ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, ब्लॉकचेन को इंक्लूड करना, IoT को, AI को, VR को इंक्लूड करना। तो हम इसके 2 तरीके हैं, या तो हम ऐसे लोग ढूंढें जो हमारे बिजनेस पर विश्वास करते हैं और दे ट्रस्ट आवर बिजनेस, और हम उनको अपनी टीम में इंक्लूड कर लें कि भाई देखो हम लीगल वाला पार्ट देंगे, बिजनेस वाला पार्ट देखेंगे, तुम टेक्नोलॉजी वाला पार्ट देंगे। एक तरीका तो ये होता है, मेक देम को-फाउंडर, मेक अ टीम एंड देन एग्जीक्यूट इट। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। इससे क्या है कि आप जो जानते नहीं है वो दूसरा जानता है, और दूसरा जो नहीं जानता वो आप जानते हैं, एक कोलैबोरेशन हो जाती है। और इसमें अगर पोटेंशियल है तो वो जरूर आपकी टीम ज्वाइन कर लेगा। ज्यादातर लोग स्टार्टअप में ऐसा ही करते हैं। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो आई डिडंट न्यू अबाउट एनीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, सो आई मेड अ फ्रेंड, आई हैड अ फ्रेंड। मैंने उनको वो आइडिया पिच करा और वो ही एग्रीड टू द आइडिया। ही सेड दैट इट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल, आई डोंट वांट टू हैंडल एनी बिजनेस ऑफ इट, यू विल हैंडल, मेरे को बस आप इतना बता दो कि मुझे बनाना क्या है। सो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, इफ यू आर सो श्योर अबाउट योर आइडिया एंड यू आर नॉट गेटिंग अ फाउंडर, व्हाट यू कैन डू, यू कैन कम, देयर आर मल्टीपल कंपनीज हु टेक कंपनीज, दे बिल्ड वेबसाइट्स, ऐप। तो आप उनको बताएंगे कि भाई मुझे ये जो है ना, इसको जो है ऐप बनाना है या इसका वेबसाइट बनाना है। सो व्हाट दे विल डू, दे विल टेक द कैरिकेचर ऑफ योर बिजनेस आइडिया, आपके बिजनेस आइडिया का पूरा जो ढांचा है वो उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके आपको आपका कंट्रोल दे देंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन डू। थैंक यू सर। वेलकम आशीष, ऑल द बेस्ट आशीष। हाय, so if there is there any other question, Pratibha is there? Yeah, please go ahead. I'll try to take as many as questions. Let's do it one by one. The host can definitely decide who will go first, so we can do one by one, no problem. I'll take the questions. Yeah, please go ahead. So Pratibha, you may ask your question. Yes, you may ask. Okay. Sir, actually, I wanted to know if I want to start a startup, in what areas I need to have expertise. Like, I don't want to hire any lawyer for a few things that are required in any startup. Either it's edutech startup or tech startup. Okay. So Yes. your voice is little breaking. Can you just repeat your questions? That would be easy for me to answer you completely. ओके सर, एक्चुअली हम ये पूछना चाह रहे थे कि अगर हम स्टार्टअप करना चाहते हैं तो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए हम किसी लॉयर को हायर नहीं करना चाहते, बिकॉज हमने खुद LLM कंप्लीट किया है। तो क्या लीगल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन से एरियाज में जिन्हें हमें देखिए मैंने आपको जो है शुरू में सेशन के बताया और रिपीट भी करा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आप एक स्टार्टअप लॉयर बनना चाहते हैं और इफ यू वांट टू हेल्प स्टार्टअप एज अ स्टार्टअप लॉयर, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या स्किल सेट्स की जाए। सबसे पहले तो आपकी ड्राफ्टिंग और आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स विल नीड डॉक्यूमेंट्स। अब आपको आइडेंटिफाई करने की किन कॉन्ट्रैक्ट्स की स्टार्टअप में जरूरत पड़ती है। मैं आपको कुछ मेंशन कर देता हूँ। को फाउंडर एग्रीमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, सर्विस एग्रीमेंट की, प्राइवेसी पॉलिसी की, टर्म्स ऑफ यूज की जो है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, आपके NDAs की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, वेंडर एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, MOUs की जरूरत पड़ती है। तो ये एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं तो आप स्टार्टअप को ये नॉर्मली जो है आप हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो एग्रीमेंट का एरिया होगा। दूसरा एरिया होता है ट्रेडमार्क का। अगर आप ट्रेडमार्क करना सीख जाते हैं तो हर कंपनी को लोगो अपना रजिस्टर करना ही करना होता है। दे हैव टू सिक्योर द नेम, दे have to secure the logo. So if you can learn how to register a trademark and how to defend a trademark, then you can also provide this category of service. अगर हम देखें तो आप काम कर सकते हैं एंटिटी रजिस्ट्रेशन में। जैसे एंटिटी रजिस्ट्रेशन बेसिकली कंपनी रजिस्ट्रेशन, LLP रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप, ये भी जो है आपका एक सेगमेंट होता है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और ये एक बेसिक होता है, क्योंकि हर कंपनी जो स्टार्टअप बनना चाहती है वो कहीं ना कहीं LLP या जो है प्राइवेट लिमिटेड बनती है। सो हम
एक ये एस्पेक्ट है। चौथा एस्पेक्ट जो होता है वो लाइसेंसेस का होता है, जैसे फूड लाइसेंस हो गया, एमसीडी लाइसेंसेस हो गया, फसाई जो कॉमनली होता है, एमएसएमई लाइसेंस हो गया, या फिर जो है आपका आईसी लाइसेंस हो गया। तो अगर आप इन एरियाज को एक्सप्लोर करें तो ये सारी सर्विसेज होती हैं जो एज अ लॉयर आपको सीखनी चाहिए अगर आपको स्टार्टअप के लोगों को सर्विसेज देनी है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप देना चाहें। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। Yeah, so there were some other questions as well. Please go ahead. I think Pratibha's question has been answered. Ashish Verma can ask next. If I have to unmute Ashish, can I do it? Okay. Good afternoon, sir. I wish to know, my name is Sandhya Goyal. I wish to know for OPC startups, do the lawyers have to have some extra knowledge or is it same? Because OPC is just one person company. The partnership contracts or deeds are not supposed to be signed. So what are the skills, especially for OPC companies, or the lawyer, would suggest that lawyers should have? Yeah. So Sandhya, the question you have put is very simple, but the context is little complex. I'll answer it in a simple manner. You will just have to reduce your knowledge of company law. Rest will remain the same. आप देखिए OPC हो, private limited हो या LLP हो, all these are part of company law. So what you will have to do, you have to limit yourself to OPC, and then rest of the things will remain same. Whatever I have discussed with Pratibha will remain same for the lawyers. Only they have to limit their knowledge in terms of company law. And even अगर आप पूरा company law जानते हैं या सीखते हैं, I think you will be able to do. There's nothing specific about OPC. There's nothing very drastic difference when you be a lawyer of a OPC. You just have to make it clear that the entity is OPC. Nothing else will change because the entity is, of course, the legal entity, and everything which is required for a legal execution of a legal document or anything will be done through that entity. So the only difference is the entity is changing. The laws will remain same. So आपको बस लिमिट कर देना है OPC को, अपने आप को बाकी चीजों को undo कर सकते हैं, और you don't need something else or additional for it. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Welcome. Next one is Mehraz Hashan. Mehraz, you may ask your question. Thank you so much, sir, for giving me that opportunity. It's really very interesting session, sir. My question is that what kind of protection we need? In the previous questions, you said that if you have the knowledge and you don't have the technology, then you can hire someone from the technology background. So what kind of protection we need कि वो फ्यूचर में हमें कुछ negatively impact ना करे हमारे startups को? And second thing, sir, can you repeat some names in working? Yeah. So names of startup who are working, any particular requirement or general name? In that legal professions and in the legal professions. Okay. So I'll just and also. Okay, so let's back to your question, and the answer for your question is: see, you don't have to feel insecure when you're giving work to somebody else. You have to send 2 documents. One will be an NDA document. NDA will protect your entire IPR. It will restrict that person to use it from anything else. And again, you will have a service agreement with that person to whom you are hiring for taking the services. In that document, you will mention a non-compete clause. You will have a non-disclosure, non-compete, and non-solicitation clause, which restrict that person to use your idea or your IPRs to start a business similar to yours. So that would not be a difficulty. You just need to execute these 2 documents. One is the NDA, and another is the service agreement, which has a clause of non-disclosure and non-compete. That's it. And some of the names of the startups in legal tech industry which are doing legal services services related to legal. Some of them are Vakil Search is very popular, then Spot Draft, Legal Capsule, Legality, Legal Rasta, Legal Witch,
Legal Witch, Legal Salah. My startup is also kind of a legal tech startup. I work. My startup name is Legal Let's Scale Up. So it's also a legal tech. Then there is a Legal, Pro sir, can you Vakil. repeat that? Sir, can you repeat your startup name, sir? Let's Scale Up. Let's Scale Up. Okay. Thank you. Thank you, sir. Yeah. So you have Mike Legal also working in IPR, Lexlogy, there are many. So you just go find out, check it, and you will find multiple of startups who are doing. I said there are hundreds of startups, and every day there is a startup coming up. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah, I hope that's answered your question. So any other question? I think we have answered almost all the questions. I don't think there is a question we have left. I don't think there is another question. So at the same time, I'll just I have opened the chat box, and there is a question pending over there. I'll not try to be that rude not to answer that question. Somebody who has written it, Wasim Wakar. The question is, sir, where can I go for taking startup as lawyer after passing out? What kind of work can do for startups? So second part, of course, we have answered already. For the first part, what you will have to do is you will have to go and explore the list of startups that I've mentioned, or you can find out other startups. Especially, I request everybody who is there, who have joined this session, to join LinkedIn and to make your own network of legal tech and startup lawyers. That would be easier for you to explore how in the industry works. If you are part of LinkedIn, you will be daily hearing about some of the other legal tech startup. So you just have to find out, make a list of it, and you can apply directly on the company's website or company's platform. You don't have to take additional effort for it. It is similar like finding a law firm and then sending an email. But you at the same time, you need to know how to email to these companies to hire you as a intern or as an employee. So that's what your answer would be. So Pawan, I think we have answered every question, and we don't have any other question. Any of the presenters would like to ask question? Anything that could be of any help, or any attendees would like to ask any other question? I would definitely like to answer it. So Pawan, any other question? Yes. Any other question from any one of the attendees? You can ask to the sir. Any one of you from the attendees? You can raise your question. Sir will resolve that. I think we are already tired. We normally are. Yes, we are normally habitual of taking 45-minute sessions, and we have already taken 15 minutes more. And I'm really sorry to everyone who is there. So somebody is there. No, somebody is there. Yeah, somebody is there. So my name is Deepika. Sir, I want to ask a question. Sir, जैसा कि आपने लाइसेंस के बारे में बताया, सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए ना, लाइसेंस कैसे हम सीख सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको. देखिए होता क्या है कि जब आप स्टार्टअप्स करते हैं तो हर स्टार्टअप को अपनी इंडस्ट्री का लाइसेंस चाहिए होता है. ठीक है. अब जैसे एमएसएमई एक कॉमन लाइसेंस होता है जो कि कोई चाहिए होता है, क्योंकि एमएसएमई लाइसेंस लेने के बाद आपको बहुत सारे सरकार से बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आसानी से लोन मिल जाना, या फिर आईपीआर में रिजम्पशन मिल जाना और रिडम्पशन मिल जाना, या फिर जो है आपको जो है कंसेशन मिल जाना. तो ऐसे बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं. आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि किन लाइसेंसेस में आप काम करना चाहते हैं. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कॉमनली जितने भी फूड की इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनको फसाई का लाइसेंस चाहिए होता है. तो आपको करना क्या है, आपको लाइसेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय स्टार्टअप, उनकी एक लिस्ट बना लेनी है. होता क्या है, अब ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है जो आपको सिखा दे. नॉर्मली सारे लाइसेंसेस अप्लाई करना यूट्यूब से ही सीख सकते हैं. यू डोंट नीड एनी लॉयर टू लर्न ऑल दिस. सो आप बस उन लाइसेंसेस का नाम लिख लें. जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है लाइसेंस होता है, उसको आईसी बोलते हैं. ये भी हर स्टार्टअप को जरूरत होता है. एमएसए
Hello. Hello. It might be possible there is some technical issue. So please wait while sir was joining again. Sorry, I lost you once again. So I was saying that there are multiple licenses. आपको बस उन licenses की list बनानी है और उन licenses को सीखना है online कि वो कैसे होती हैं. तो ये बहुत basic हैं, आपको बहुत आसानी से किसी भी platform पर मिल जाएंगी, खासकर Google पे, कि what are the common licenses required by startups. ठीक है, आपको बस industry अलग-अलग डालनी है. fintech industry है, टेक इंडस्ट्री जो है, फूड टेक इंडस्ट्री और ड्रोन टेक इंडस्ट्री. आप बस इंडस्ट्री का नाम डालेंगे, आपको लाइसेंस का नाम पता चल जाएगा. देन यू कैन एक्सप्लोर कि कैसे होना है. जैसे एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, एनजीओ रजिस्ट्रेशन, ये एक बेसिक चीजें होती हैं. तो इनको आप जो है खुद भी सीख सकते हैं या फिर किसी सीनियर के साथ रहकर भी सीख सकते हैं. तो दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं. So this is what I think answers your question. See, it is very difficult to answer everything in just 1 hour. This is the beginning of the curiosity. You don't kill it after going home. मतलब normally क्या होता है ना कि student life में ना गजनी होते हैं, तो जब चीजें अच्छी दिखती है ना बहुत एक्साइट होते हैं, याद करते हैं और फिर घर जाके उसको 5-10 मिनट में भूल जाते हैं क्योंकि उनका दोबारा कभी पाला नहीं पड़ता. So that's how we behave. Don't mind it because I'm not saying you all are, क्योंकि मैं भी वही करता था. So everybody does that. तो हमें इस टाइम होता है कि अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है. बट आई से कि अगले 1 हफ्ते तक आप एक्सप्लोर करें इस इंडस्ट्री को, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पोटेंशियल. हो सकता है कि आपका करियर, आपकी जो बस है वो यही मिल जाए और आपको सीट भी इसमें मिल जाए. सो ऑल द बेस्ट everybody. I think we are closing it and we have answered all the questions. So Pawan, I'll take your leave. Yeah. Yes, sir. Definitely, sir. There is a lot of issues and queries which are raised by first listeners who listen about any technological venture or any legal venture about that. And you very well explained about each and every aspect with related to the startups and legal and ethical issues and all that. So with this, I would like to conclude this session, sir, on behalf of IMT College of Law. With all due respect, I would like to thank you, sir, for your presence and at this workshop. Deliver such a wonderful, knowledgeable lecture, sir. Thank you so much. Thank you all participants for being Thank such a patient listener. All of us learned a lot today and has now developed a startup being that spirit of entrepreneurship in all of us. And it has been a very interesting session. We really appreciate you, sir, for taking out time for all of us from your busy schedule. It always been our pleasure to have you with us, sir. We look forward also to see you again for upcoming events in future. So thank you, sir. Thank you, listeners, and thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you, Pawan, for your kind words. Thank you, IMT, for calling me, and all the best to everybody who has joined the session. If you would like to connect with me, you can connect me on LinkedIn. All the best. If somebody has this curiosity of doing startup, we can connect on LinkedIn. Thank you so much. All the best. Thank you, sir. Thank you once again, sir.